इस बिल में मतलब कि इसका जो सरकार ने रीज़न्स दिए हैं, सुझाव दिए मतलब कि कारण बताए हैं कि क्यों इस बिल को लाया गया। इसका मुख्य वजह ये बताई गई कि उत्तर प्रदेश में रिसोर्सेज़ जो हैं, वो स्केर्स हैं और ऐसे समय में अगर हम अपने पॉपुलेशंस को कंट्रोल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लोगों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब हो पाएगा। तो हमने जैसे रिसर्च के एग्जाम्पल दिए और इसके मतलब कि एग्जाम्पल देखे चाइना में कैसे वन साइड पॉलिसी लाई गई और उसके बाद वहाँ पे उसके क्या इम्प्लीकेशंस आए कि वहाँ की सरकार को इसको रिवर्स करना पड़ा। तो इसके साथ ही साथ हम इस बिल के कुछ और पहलुओं को भी मतलब कि चर्चा करने की कोशिश करेंगे जैसे कि क्या मतलब कि जो लोग इस बिल के कंट्रासेप्शंस में इस पॉलिसी के कंट्रासेप्शंस में जाएंगे उनके ऊपर जो पेनाल्टी लगाई जाएगी, जो उन्हें पनिशमेंट दिया जा रहा है कि वो लोग वेलफेयर के दायरे से बाहर हो जाएंगे, तो क्या एक उचित है। और दूसरी चीज जो इंसेंटिव्स दी जा रही है लोगों को मतलब कि इसके जरिए वो क्या सही है और क्या ऐसे समय में जब हमारी पॉपुलेशन इंडिया की होल पॉपुलेशन जो है अगर हम देखें तो वो एक फर्टिलिटी रेट जो हमारी 2.2 है। तो ऐसे समय में क्या हमें ऐसे कानून लाने चाहिए कि जब हमारी जनसंख्या एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है और वह दो 21वीं सदी तक मतलब 2100 तक ले 22वीं सदी तक वो 1 करोड़ मतलब माफ कीजिएगा 1 अरब 10 करोड़ हो जाएगी, यानी कि हमारी जनसंख्या आज के मुकाबले में इसमें कमी आएगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में या देश में ऐसे खास कानून लाने जरूरी हैं या फिर हमें कुछ डिफरेंट वे में सोच के जनसंख्या नियंत्रण पे दूसरे ढंग से सोचना चाहिए। तो उस पर आप आज बात होगी और अब ये फ्लोर ओपन है और कोई भी जो है बोल सकता है, जो भी मतलब फेवर अगेंस्ट जिसमें भी आप बोलना चाहें यहाँ पे स्वतंत्र। और दूसरी चीज हर बार की डिबेट की तरह डिस्कशन की तरह इस बार भी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर हमारे मतभेद है, किसी से मनभेद नहीं है। हाँ होता है कई बार हीटेड मतलब डिबेट्स हो जाते हैं, लेकिन उसमें किसी का कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं रहता किसी से, बस केवल एक आइडियोलॉजी की आइडियोलॉजिकल हमारा जो स्टैंड रहता है। तो डिबेट शुरू करते हैं, जो लोग फेवर में बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, जो लोग अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। फ्लोर इज ओपन नाउ। Hello Hitesh, am I audible? Yes, sir. So population is something that always been a key issue in any part of state or central or anything. So when I have gone through this draft, of course the intention is correct. Maybe I have never experienced the conditions of Uttar Pradesh, but yeah, maybe there are the scarcity of the resources in providing education, health, and maybe the population more time. So what I have thought is, of course, the intention or the initiation is good, but this would have been in a different way. All of a sudden, you just can't say that okay, right from now on, from 1 year after, just two childs are permitted, or else more than that, the penalties. I mean, they will not get the subsidies, and people from that family will not get to be part in the contest in the elections, and moreover, in even in applying jobs even. So the penalties have been a bit harsh, and this population control have affected in many ways. Maybe if all of a sudden it is like encouraging some abortions, and there are some several aspects we have to keep in the mind, that balancing the sex ratio, and at the same time there are some serious effects on the mothers, like genocide efforts and unprecedented health issues, like related to the ovaries, uterus, and all. Because of these abortions and all, and also at the same time, there are many people who are not aware of these acts and the bills, and the government is autonomously interfered in the lives of the people, and just making them that you can't have the people, and you can't have the child more than two and all. So it is like a marathon run. You can't just say by controlling over a bill or something. It has to be gone through from the fundamental. The way would have been an approach would have been different a bit from the manner. And at the same time, I feel like if the government had gone to the roots of the villages and the society, and it would be better if they had educated them and making themselves aware of the conditions and situations of the particular state and all, and making the women aware of the
sexual health, and at the same time the side effects and all. But yeah, so on final, okay, I agree with the intention that population control must be there because of the resources, because of the availability of access to education, health and all. But I'm not agree with the way they have been approached. It would have been different, like educating them, making themselves aware of the all the conditions in their economical situations. So like approach should be different. Thank you. मेरे अकॉर्डिंग शायद से स्केल्ड रिसोर्सेज नहीं, जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट तुम मिस कर गए नितिन। मैं बोलूं? यस। हाँ, तो दिस इज वेरी क्लियर कि वी नीड, मतलब पॉपुलेशन नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, बट द वे, मतलब कि जिस तरीके से ये लॉ लाया गया है, वो आई डोंट थिंक कि लेजिस्लेशन के थ्रू हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज तो, एक मियाँ बीवी अपने बेडरूम में क्या करते हैं, इट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक लिबर्टी है, हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको कंट्रोल करना ही है बर्थ को, तो यू कैन इधर एजुकेट पीपल, और अवेयर कर सकते हैं आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए, और ये सब कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप किसी को फोर्स करें कि नहीं, आपको 2 ही बच्चे रखने हैं या 3 ही बच्चे रखने हैं। और इसके इसके अलावा, मतलब हमारी जो बेसिक लिबर्टी है वो तो हार्म होगी ही, वो तो हैम्पर होगी, लेकिन इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट रीजंस जो प्रूव करते हैं कि हमें एक लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, फोर्स लॉ नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। जैसे कि अगर मैं दूं रीजन, तो पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर हम ये लिमिट करते हैं कि आप 2 ही बच्चे रखो, तो आने वाले टाइम में हमारा डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि जो यंगर पॉपुलेशन होगा उसका रेशियो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू द रेशियो ऑफ द ओल्डर पॉपुलेशन, जो एज कर रहे हैं, जो जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, उनके कंपैरिजन में हमारा जो रेशियो होगा बहुत कम होगा। और इस तरीके से हम पर जो है, जो यंगर पॉपुलेशन है, उन पर बहुत दबाव पड़ेगा। जैसे हम सब लोग सोशियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है लॉट, जो बूढ़े लोगों का या जो भी एक कंट्री में जितने लोग होते हैं उनका काम चलाता है, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। और एक लॉट होता है जो चुपचाप बैठ के बस खा रहा है, जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। तो हम ऐसी लेजिस्लेशन लाते हैं जहां पर आप रोक देंगे कि भैया इससे ज्यादा आपको नहीं पैदा करने हैं बच्चे, तो यंगर पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन जो है इसका रेशियो कम होगा, और इससे जो है इकोनॉमी पे स्ट्रेन पड़ेगा, उन लोगों पर स्ट्रेन पड़ेगा, वर्किंग पॉपुलेशन पे स्ट्रेन पड़ेगा। और इसके अलावा आई गेस कि इस लेजिस्लेशन से फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब की प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि इसको यूज करके, इसको एज अ टूल यूज करके बहुत लोग जाएंगे जो बर्थ चेक करवाएंगे, और अगर लड़कियां होंगी तो उनको खत्म भी कर देंगे, उन भ्रूण में ही उनको मार देंगे। और इसको एज ए स्केप यूज किया जाएगा, कहा जाएगा कि अरे भैया सरकार ने तो कहा है 2 ही बच्चे हो सकते, तो हम नहीं हो सकते हैं। तो आई गेस फीमेल की तरफ, मतलब फीमेल के खिलाफ जो क्राइम्स है वो इससे बढ़ेंगे। और जैसे चाइना ने भी अडॉप्ट किया था ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी था, लेकिन वहां पर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि अब आप देख रहे हैं वहां पे पॉपुलेशन, जो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, बूढ़े लोग की संख्या ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से उसने भी ये पॉलिसी हटा दी, और अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पे आ गया है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत झेलने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ लेजिस्लेशन, मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर करना चाहिए। और जैसे कि हम देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं बहुत अच्छा करते हैं पॉपुलेशन के मामले में, क्योंकि वहां पे लोग अवेयर हैं, एडुकेटेड हैं। तो वैसे ही हम कुछ इधर भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ, तो मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ लेजिस्लेशन वी शुड गो फॉर अवेयरनेस एंड एजुकेटिंग पीपल। और ये दिस इज माय पॉइंट। हेलो। यस अंजलि। या तो मैं जानवी नितिन, इन दोनों के पॉइंट से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ, और इस हेलो। पॉपुलेशन बिल के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एम आई क्लियर? एम आई यस या यस। क्लियरली ऑडिबल? हाँ हाँ। ओके ओके ओके। तो मैं इन दोनों के पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूँ, और यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल सही है कि
गवर्नमेंट को अगर स्टेबलाइजेशन लानी है जो पहले से मतलब हम देख सकते हैं, डेटा अवेलेबल है कि जो धीरे-धीरे हमारी पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। फिर भी अगर इनको कोई ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऐसे मेजर्स नहीं लाने चाहिए, बिल्कुल भी कोएर्सिव टाइप के। पहले तो अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक लोगों की लाइफ सही करनी चाहिए, लेकिन इन सब के अलावा मैं एक तरफ ध्यान मतलब बताना हटा आप लोग का ले जाना चाहती हूँ। जैसे कि अब यूपी में इलेक्शंस भी आ गए हैं, ठीक है? तो हम सब जानते हैं कि बीजेपी का जो पहले से मतलब रहा है कि वायलेंस, स्पेशली हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस, और जब भी पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है, मतलब कि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम्स की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये वो। तो मेरा मेरा ध्यान एक तरफ और जा रहा है, और ये बात सही भी है कि पॉपुलेशन आने वाली है, इन लोगों का मतलब ये जो है ऐसे करके प्रोपेगेंडा फैला के पॉपुलेशन वाला बहाना दे के हिंदू मुस्लिम में वायलेंस करवाना भी है। तो मैं इस बारे में भी आप सबकी व्यू सुनना चाहूंगी। दैट्स इट। Anjali, I am totally agree with you. I also want to add this point that uh, we have this increasing population problem from many years. But as you all know that this present government of BJP in Uttar Pradesh has completed 4.5 years, and our elections are going to be done in next 2 to 3 आयशा आपकी months. वॉल्यूम क्लियर नहीं है। Yeah. Hitesh, can I go? Hello. एक मिनट आयशा को कंप्लीट करना। Yeah, sure. Okay. So I believe that ये गवर्नमेंट बीजेपी का एक नया पैतरा ये इसलिए है क्योंकि दे लव टू play this identity politics, and they always have this thing कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा मुस्लिम लोग से ही ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसा कि अंजलि ने कहा, और वो ऐसा इसे एक इस्तेमाल करेंगे इस रूप में कि आने वाले समय में मीडिया चैनल्स पे ऐसा दिखाया जाएगा मुस्लिम लोग की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, मुस्लिम इसके लिए जिम्मेदार हैं, और मीडिया इसको कवरेज देगी, और जिससे कि बीजेपी को फिर एक नया फायदा मिलेगा और उनके वोट इंक्रीज होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। बिल्कुल, स्नेहा आप बोल सकते Yeah. Hello, everyone. So I'm Sneha Agrawal. So when it comes to the UP population control bill, see, first of all, whatever I am of the view that yes, there needs to be a control over the population because it is increasing drastically, and we have limited resources. So I am in favor that yeah, population should be controlled, but I am not in favor the way through which it is going to be controlled. Right? This bill goes against the international laws on which India stands. To give you an example, there in 1994 India participated in a conference which was International Conference on Population and Development, to which India is a signatory, and in that conference India has said that population control should be through the informed free choice rather than the incentives, disincentives, and coercion. it, India is a signatory of that conference, so according to that, this bill which uses coercion, incentives, disincentives as a mean goes against that conference. This is the first reason due to which I opposed this bill, because this bill don't go parallelly to the conference, to that conference to which India is a signatory. And then second reason why this bill should not be passed is due to, because it is kind of an attack on the right of privacy. It is a choice of women how many children she wants. It is a choice of her, and now using this incentive that those who will have only two children won't be able to benefit from the government schemes is an indirect attack on that right to privacy, which even Supreme Court has held in the K. Puttaswamy versus Indian Union of India case. So this there the court also held that the freedom to reproductive right is a freedom of every person, every citizen of India. So this bill contradicts that right also.
And also, as we all know, like as Janvi and Anjali has said, that the communal point is also included in that bill. But apart from that, it also goes to harm the socio-economic weak families, like, because you know that the families which are socially and economically weak tend to have large families. So when you will, when you will not get, when you will not give them benefit through the government scheme, so I think that this is an attack over the social justice and social equality. Because on one side, government says that we are here for the poor, we are here for helping them, and on the other side, it is saying that if you have more than two children, you will not get benefit of any government scheme. So this is totally contradicting. And I think that the most disastrous impact of this bill would be on the socio-economic weak families, because they usually have, large families. And then one लेकिन more स्नेहा, thing. जो Yeah. वीक फैमिलीज हैं, अगर उनके लिए हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं तो उनके लिए इजी नहीं रहेगा टू मैनेज देयर होम लाइफस्टाइल. But maybe जो population control है, that would be benefit for the next generation. But जो क्योंकि गवर्नमेंट उनके पेरेंट्स को तो कुछ देगी नहीं, क्योंकि उनके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन है, उनका क्या होगा? हाउ विल दे हितेश लिव? मैं हाँ जी, उनको गवर्नमेंट से एकदम अलग कर दिया जाएगा. मैं हितेश को And yeah, यस one more प्रदीप, point. एक मिनट स्नेहा को कंप्लीट अभी करने दो. Yeah, just one more point. See, this bill also, also uses sterilization as an incentive. So I want to remind all of you that there is a case, Devika Basu versus Union of India 2016, where we all have witnessed that how cruelty was faced by the persons who went to sterilization camps. They were, compared to the concentration camps of Germany. This is the way. So I am scared that this bill can also, brought those times again, when people will go to sterilization camps, and they will be harassed, they will be sexually exploited. We all have witnessed in the Devika Vasu versus Union of India case. So these are my points. Yeah, now you can continue. हितेश क्या अभी लगे? आपने बोला था ना कि क्या कहते हैं गरीब फैमिली के लिए लाइक ये पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी है काइंड ऑफ कि उनके लिए बेनिफिट होगा, उनके लिए बेनिफिट हाँ नहीं जी, होगा. क्योंकि कैसे? अगर किसी नॉर्मल फैमिली में देखा जाए तो अगर लाइक मेरे जो घर में मेड आती है उनके एक अराउंड 6 चिल्ड्रंस है, तो उसमें अराउंड 4 to 5 वर्किंग हैं एंड सब अभी छोटे छोटे हैं. वो लाइक घर में जैसे 2 लड़कियां हैं तो वो और किसी घर में काम करने जाती हैं, आंटी अलग काम करती है, उनके लड़के अलग कहीं लेबरिंग करते हैं. तो आई थिंक वो उनके लिए वे ऑफ इनकम है कि ज़्यादा बच्चे तो ज़्यादा इनकम होंगी ताकि घर चल सके एंड ऑब्वियसली अपनी फैमिली को थोड़ा और बढ़ा सके. तो आई थिंक ये कहीं कहीं ना कहीं से उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी. तो हाँ जी, अभी के लिए, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए फायदा होगा. नहीं, एक्चुअली पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी, वो तो जरूरी है ही, लेकिन द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि दिस बिल जो लेजिस्लेशन लाया गया है वो गलत है. यू कैन यूज अच्छा, अदर ये जो मेथड सच एज कॉन्ट्रासेप्शन और ये सब आप अवेयर करिए, लेकिन आप किसी को फोर्स मत करिए कि आपको. अच्छा, ये जो बिल है ये प्रेजेंट जनरेशन पे अप्लाई होगा या पास्ट जनरेशन पे? I think, see, it will apply from 2022, if I'm not wrong. So if you will see that, see, making the next generation, to make a next generation takes almost 10 years. So I don't think that during this period it will apply to that same generation only. तो फिर तो Maybe ठीक 1 or रहेगा, 2 year, but same क्योंकि generation पर apply करेंगे ना. आप कह रहे हैं सेम जनरेशन, जैसे अभी किसी के 4 चिल्ड्रंस हैं तो उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी. अभी के लिए अप्लाई होगा या बाद के जो नई जनरेशन आ रही है अगर उन्होंने भी 4 चिल्ड्रन नहीं, किए अभी के तब? लिए, अभी के लिए, अभी के लिए अच्छा, अभी के लिए फिर नहीं. 2022 तक के जनरेशन चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगी एक साल में. हाँ जी, It take almost 10 to 15 years to change the generation. So एक मिनट, इसकी अप्लाई डेट बता सकते हो कोई कि किस जनरेशन के लिए, मतलब किसके बाद से उन्हें? नहीं, आई थिंक 2022 से जब अप्लाई हो रहा है तो हमारी जनरेशन को ये इफेक्ट करेगा ना, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं. अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता तो ये बिल 10-15 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए होता तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है. बिल्कुल राइट. बीजेपी तो उसकी इलेक्शंस तो 2022 में आ रहे हैं, तो वो बिल भी अभी अप्लाई करेगी. और
दूसरा चीज तो हितेश देखो कोई और बोलना यस, क्या हुआ विकास? कोई और बताता है I want to ask one thing. Is the bill really necessary? I mean, in 1975 or 1985, the fertility rate in India is almost 6. But now it is going down, and the Supreme Court also made a statement that, not regarding this issue, but at some point they said that in 2025 it will reach to 1.9 or 2.1 something. So, is these laws are really necessary? I mean, people are aware of themselves, and the fertility rate is going down, and it is showing a sharp decline in that. No. I think, Nitin, see, we need to control population. We really need to. Because, see, what you are saying that people are informed of their choices, that is the case in urban areas, right? But when it comes to the backward states like Uttar Pradesh, Uttar Pradesh, I'll say it has most illiterate persons when you compare to other states like Tamil Nadu and Kerala. So in the rural areas, still, if we go and, see, they still have eight children. वहां पे अब जाके जनसंख्या कम होना शुरू हुई लेकिन अब हम मतलब कि देखते हैं कि उसका चाइना का डेमोग्राफिक एडवांटेज उसको क्या मिला उसको हमने क्या हुआ कि चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को उसने क्या किया कि अपनी जनसंख्या की बढ़ती हुई जनसंख्या को एक सुअवसर में बदला और उसका नतीजा ये हुआ कि आज चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हब नहीं है नहीं विकास, वो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल इस मतलब यूज इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे। हमारे यहाँ पे तो मतलब यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, हम उसको क्यों यूज नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम तो कभी बेनिफिट ले ही नहीं सकते बढ़ती हुई जनसंख्या से। तो एक मिनट रिसोर्सेज की मेरे हिसाब से लगता है रिसोर्सेज की कमी नहीं है हमारे यहाँ तो हमारे फिर यहाँ लोग क्यों मतलब इतने अनएम्प्लॉयड हैं? क्यों अनएम्प्लॉयड है? क्यों अनएम्प्लॉयमेंट जो है? लोग क्यों इतने अनएम्प्लॉयड है उसका रीजन बताते हैं हम लोग इसलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि हम सही इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं मतलब फॉलो कर पाए पता है हमारे यहाँ क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक पॉलिसी देखें तो चाइना में क्या है कि वहां पर उसने पीपीटी मॉडल बहुत अच्छे से ढंग से मतलब विकसित किया हमारे यहाँ क्या है कि उसने इंडस्ट्रीज के मतलब फैसिलिटेशन में काफी मतलब अच्छा योगदान दिया हमारे यहाँ क्या था कि हमने उस रेट में जो है जिस रेट में हमें करना चाहिए था इंडस्ट्रियल सेटलमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यहाँ पे बहुत सारे हेडल्स आए तो उस वे में हम लोग नहीं कर पाए कि जो है मतलब कि उस जिस मतलब कि अग्रेसिव वे में जो है चाइना ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया उस वे में हम अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर तो पाए और विकास अगर हम मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी तक इतनी पॉपुलेशन है, हम अभी तक इंडस्ट्रियल नहीं कर पाए, मतलब जिस स्पेस पर हमें इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए था, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तब इंडस्ट्रीज बूम करेंगी? ऐसा मतलब कैसे हो सकता है? ये हम मतलब कि जब अगला जब जो इतनी अगला पॉपुलेशन प्रिडिक्शन है बढ़ बताते हैं हाँ अगला जो प्रिडिक्शन हमारा है कि 2007 मतलब कि 2060 उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया अपने पॉपुलेशन के सबसे पीक पे होगी और 2100 तक मतलब कि 2100 तक उस समय हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो कम होके अगर इसी रेट से चलता रहा अगर इस पे कोई मतलब कि जो है हम लोग वेरिएस ना लगाएं या कहें कि मतलब कि कोई नीड ना समझे कि हाँ पॉपुलेशन हमको कंट्रोल करना है जैसे चलती रही स्टेटस को मेंटेन किए रहे तो क्या है कि हमारी पॉपुलेशन जो है मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है वो 1 अरब 10 करोड़ यानी कि हमारी पॉपुलेशन में लगभग 30 से 40 करोड़ की गिरावट आएगी अगले मतलब कि 80 सालों में तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि अगर आप इस टाइम मतलब कि कोई भी अग्रेसिव जैसे कि पॉपुलेशन से जो कोई बिल लेके आते हैं तो क्या होगा कि तब हम अपने पॉपुलेशन से और ज्यादा मतलब कि जो हमारा ये 1 अरब 10 करोड़ है उससे और ज्यादा कम हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आप जानते हैं कि फिर हम मतलब कि लेबर्स के लिए किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और ये हमारी केवल हमारी देश की मतलब कि घटती हुई समस्या नहीं बन जाएगी उसमें तब जो इस समय हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या बनी हुई थी तो आने वाले समय में लगभग 2070 से मतलब 2070 से 80 के दशक के बाद में क्या हो जाएगा कि घटती हुई जनसंख्या समस्या बन जाएगी जैसे कुछ देशों में अब ये इस समय एज मतलब कि प्रॉब्लम उभर के आई है तो विकास वो तो मतलब ओके यू आर सेइंग कि 2070 के करीब में जनसंख्या डिक्लाइन होगी, तो उतने साल तक क्या हम लोग सफर करते रहे? मतलब क्या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे उतने decades तक?
ना जाने हम में से कितने होंगे जो 2070 तक होंगे ही नहीं। तो क्या 2070 तक वेट करना चाहिए? इज इट गुड अ, टू वेट? मुझे मुझे लगता है कि अभी जो सिचुएशन है वो जल्दी ही बिलो रिप्लेसमेंट लेवल को हिट करेगा, और जैसे ही वो उसको हिट करेगा हमारी वर्किंग पॉपुलेशन पे बर्डन आएगा, इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। तो आई थिंक देखो, हमारी कंट्री में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये तो कोई नहीं बोल सकता कि इंडिया में रिसोर्सेज की कमी हो रही है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे रिसोर्सेज जो रिजर्व्ड है, जो अभी तक डिसिफर नहीं हुए हैं, उसके लिए काम नहीं किया जा रहा है, जो कि दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग ऑन, मतलब कि रिसोर्सेज को डेवलप करने में। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज जो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं हमारी कंट्री में। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने, उनको क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करने में आई थिंक पॉलिसीज उसके लिए बनानी चाहिए। आई थिंक सब इससे एग्री भी मेरा एक पॉइंट था वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जानी, बोला यू था। आर राइट। मैं मतलब कि इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ क्या है कि इस पे नहीं, मतलब कि रिसोर्सेज को ध्यान नहीं दिया जाता, उसको सर्च, मतलब कि सर्च नहीं किया जाता। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। महात्मा गांधी ने एक वर्ड कहा था कि हमारे यहाँ पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो एक तरीके से हम इसको करप्शन के लिए भी, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब मतलब कि अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ मतलब क्या है कि रिसोर्सेज की बात की जाती है कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है। तो एक एग्जांपल हम देते हैं। एग्जांपल वो है कि हमारे यहाँ जो है, मतलब कि जो अभी न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, वो किससे बनाई जाती है? यूरेनियम से बनाई जाती है। तो यूरेनियम का हमारे यहाँ उतना भंडार नहीं है, उतने मिनरल्स नहीं है। लेकिन थोरियम से भी क्या हो सकता है कि साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं आने वाले समय में इससे भी न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। तो थोरियम का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भंडार है। तो उसका क्या हो रहा है कि इस समय हम उसको मतलब कि इरेशनली उसको क्या कर रहे हैं कि फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज के समय में हम अपने पैसा केवल थोड़ा सा, मतलब कि चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या करें कि उसका हम खुद के यहाँ अपने यहाँ प्रिजर्व ना करने के बजाय उसको क्या करें, हम वो मतलब कि एक्सपोर्ट करें। तो ये है मतलब कि इसका फिर हमारे ऊपर फिर फ्यूचर कंसिक्वेंसेस पड़ेगा जो है। और मैं यही कहना चाहता था। पहले तो आप कुछ बोल रहे थे। वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला बोलता ना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है, गवर्नमेंट वैकेंसीज कम कर रही है, प्राइवेट लाइक अगर देखा है तो गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज कम हो रही है, प्राइवेट जॉब्स के लिए ज़्यादा लाइक प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। अभी एक देखा है तो यूपी में जल बोर्ड को लाइक प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। तो मेन रीज़न ये है, लाइक पहले 1980s में भी तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी, पर जब भी लोगों को गवर्नमेंट जॉब ये सब ज़्यादा मिलती थी। और इस समय देखा जाए तो सब जो यूथ है, हमारा एजुकेटेड यूथ है, वो तो स्ट्रगल ही करता रह जाता है। तो कहाँ से वो इतना और सोचेगा। या ललित, तुमने ये जब प्राइवेटाइजेशन की बात की तो मेरे दिमाग में एक और पॉइंट आ गया। मतलब वो कि देखो क्या होता है कि जो मतलब कि इकोनॉमिक्स में हम सब पढ़े हैं कि एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है हमारे यहाँ कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं होता तो क्या करती कि जो प्राइवेट कंपनियां थी वो यहाँ क्या करती, नया इन्वेस्टमेंट करती, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती, फैक्ट्रीज नहीं बिल्डअप करती। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट तो बहुत बोलती है हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। लेकिन जो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो कैसे बढ़ रहा है? वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि जो सरकार का मतलब कि पीएसयूज थी, हमारी पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज थी, उसको क्या हुआ कि उसको सरकार बेच रही प्राइवेट को। तो जब वो प्राइवेट क्या करेगा कि प्राइवेट के लिए वो एज ए इन्वेस्टमेंट ही रहेगा, मतलब कोई नया मतलब कि कैपिटल खरीदना। लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए वो क्या है कि जो है, अगर हम एग्रीगेट टर्म में देखें तो वो हमारे लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, उससे हमको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही था, वो फैक्ट्री पहले से ही रन कर रही थी, बस मतलब थोड़ी इफिशिएंटली नहीं चल रही थी। और अगर दूसरी चीज यही होता है कि अगर गवर्नमेंट इसको मतलब प्राइवेटाइजेशन ना करती तो क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती वो इंडिया में मतलब कि बाजार की अपॉर्चुनिटी लेबर मतलब देख के क्या करती कि हमारे इन्वेस्टमेंट करती, अच्छे सुनहरे मौके थे। पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके से हम और दूसरी चीज ये हुआ कि नई फैक्ट्री टू बिल्डअप नहीं हुई। जब नई फैक्ट्री नहीं बिल्डअप हो रही तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि मतलब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रहा है, और मतलब कि रोजगार के अवसर नहीं हो पा रहे हैं। और जो मतलब कि पहले से थोड़े थे पब्लिक सेक्टर में, वो भी क्या हो रहे हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर के विल पे हैं, कब हायर किए जाएं, कब हायर किए जाएं, कब फायर किए जाएं। तो इससे भी मतलब क्या हो रहा है कि भाई ना हम कि अपने जो
पॉलिसी है वो और रिसोर्सेज है उसको हम रेशनली नहीं यूज कर रहे हैं। शायद से इसका विकास का मतलब ऐसे ये है कि क्वांटिटी में यूज़ नहीं हो रहा है, सिर्फ क्वालिटी वर्क हो रहा है। तो क्वांटिटी में ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे, क्वालिटी में कम लोग आ रहे हैं, इसलिए सही, अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, या क्वालिटी और क्वांटिटी बस इससे थोड़ा-सा डिफरेंस है। और जैसे कि दूसरी बात अंजलि ने कहा था कि जब शुरू में हुआ था डिबेट, उसने कहा था कि हम इसको क्रिमिनल एंगल से भी देखें। तो उससे भी अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है कि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली मुस्लिम को ज़्यादा पॉपुलेशंस के लिए ब्लेम करते हैं कि उनके मतलब कि 4 से 6 से 7 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। लेकिन आज से अगर हम यही 10 साल पहले जाके देखें तो हिंदू के भी जितने बच्चे थे उतने मुस्लिम के भी बच्चे थे। तो ये एक तरीके से क्या है कि राजनीति में लोग पावर के चक्कर में और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे सारी चीज़ें करते हैं। तो इस पे जो पर्टिकुलरली पॉलिटिकल के मतलब कि स्टूडेंट्स हैं तो वो चीज़ें समझते हैं, बाकी और लोग नहीं समझ पाते हैं। और मतलब कि अगला जब हम इस ड्राफ्ट बिल को पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, 2 मतलब जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। पहला डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, अगर मान लो किसी को एक पहला चाइल्ड या दूसरा चाइल्ड, 2 चाइल्ड है, उनमें से एक स्पेशली एबल्ड है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या है कि जो कपल हैं उनको ये तीसरा चाइल्ड अगर हो जाता है तो वो जो है 2 चाइल्ड नॉर्म्स के कंट्रासेप्शंस में नहीं माना जाएगा। तो ये एक तरीके से जो स्पेशली एबल्ड है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और अगला चीज़ जो इस बिल में मतलब कि एज एक्सेप्शन दिया गया है कि मान लो अगर एक कोई बंदा है, उसकी 3 वाइफ हैं, अगर उसका मतलब पर्सनल लॉ इसकी परमिशन देता है कि उसके 1 से ज़्यादा वाइफ रह सकती है, तो उसको कुल मिला के मतलब 2 ही बच्चे होने चाहिए। अगर पहली मान लो कि अगर उसके 3 वाइफ ए, बी, सी हैं, तो ए और बी से एक-एक बच्चा हो गया तो सी मतलब कि बिना बच्चा के रहेगी। और ऐसे कंडीशन में तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वो जो मतलब कि उसके जो राइट्स हैं मतलब कि एज़ ए वुमन सब चाहती हैं कि हमारा मतलब कि क्या हो कि एक बच्चा हो। सबको मदरहुड मतलब कि ये एक ज़ाहिर-सी बात है कि इमोशनल चीज़ें हैं कि वो एज़ ए मदर बिहेव होना चाहती हैं। तो इस सिचुएशंस में कहीं न कहीं इंडिविजुअल राइट्स का मतलब कि वायलेशंस भी है। तो इस पे आगे मतलब कि अपने सभी भी रख सकते हैं कि क्या है या नहीं है। विकास, वो डिसेबल्ड वाला पॉइंट क्या था कि अगर किसी के 2 चाइल्ड डिसेबल्ड होते तो तीसरा नहीं कर सकता, ऐसा है? नहीं, तीसरा कर सकते हैं। ओके। अगर आपके 2 चाइल्ड में से एक चाइल्ड डिसेबल्ड हो गया या दोनों डिसेबल्ड हो गए तो आपको मतलब तीसरा बच्चा हो सकता है। लेकिन ओके। अगर ओके। मान लो कि आपको तीसरे प्रेगनेंसी के दौरान सेम प्रेगनेंसी में 2 बच्चे हो गए, तो फिर वो कंट्रासेप्शन का माना जाएगा। मेरा सबसे क्वेश्चन था कि लाइक सबने इस बिल को क्रिटिसाइज तो कर दिया, बट एक होना चाहिए ना कि लाइक हमारे पास अल्टरनेट कुछ है इस बिल का कि इसकी जगह ये बिल हो, मतलब ये हो तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, कोई बता सकता है? नहीं, बिल देखो नहीं, यहाँ पे सब वैसे तो कहते हैं कि हमें अवेयर करना चाहिए ना पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। बिल पास करने के लिए नहीं कह रहे, हम अवेयर करने के लिए कह रहे हैं। जनरल ओके। जो व्यू पॉइंट है। और अब हम खुद देख रहे हैं, अब जैसे कि विकास ने पॉइंट आउट किया, बहुत लोगों ने पॉइंट आउट किया, जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे घट रही है। इसका मतलब लोग सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं कि मतलब पॉपुलेशन एक अभी ओवर पॉपुलेशन जो है वो खराब मतलब कर सकती है सिचुएशंस को, तो लोग खुद ही अवेयर हो रहे हैं। और बाकी जो है गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए जिससे एकदम लोअर लेवल पे जाकर लोगों को पता चले आखिर कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है, ये मेथड्स क्या होते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता है और बहुत लोग डरते भी हैं इसको यूज करके, कुछ गलत इफेक्ट भी हो सकता है। तो आई थिंक अवेयर करना चाहिए। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकते हैं, जो रिसोर्सेज आज तक हमें डिस्कवर नहीं किए उनको डिस्कवर कर सकते हैं। तीसरी चीज, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है वहां पर हम ये कर सकते हैं कि लोगों को स्किल्ड बना सकते हैं। और जैसे कि विकास ने पॉइंट आउट किया
कि इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं, नए वेंचर्स शुरू कर सकते हैं, तो हाँ ये सब अल्टरनेटिव्स हैं। आप फोर्स मत कीजिए लोगों को। लोग अगर अपने विल से कर रहे हैं कुछ तो ठीक है। यहाँ पर आपकी लिबर्टी की बात हो रही है। अगर कल हम आपको कह दें कल आकर कि जैसे कि आजकल रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लें, ठीक है, आप आज किसी के साथ हैं, हो सकता है कल आपको कोई और पसंद आ गया, लेकिन आके गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं भैया आप एक बार किसी से प्यार कर ली तो अब दूसरी बार किसी से प्यार नहीं करना है। तो ये तो हमारी लिबर्टी को हर्ट कर रहा है ना। हम जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आप अवेयर कर सकते हैं। तो वही चीज मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए लोग को। ये बहुत ही यूटोपियन हो सकता है, लेकिन आजकल लोग खुद ही सेल्फ अवेयर हो रहे हैं। तो आई गेस सेल्फ अवेयरनेस, रिसोर्स हार्नेसिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब आई थिंक विल हेल्प फॉर development of the country without controlling population. यानी सेक्स क्या एजुकेशन को population control प्रमोट करना legislation. सही है। हम आई क्या? गेस होना सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करना भी सही है, आई थिंक। हाँ 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 बिल्कुल। यस। किसी को और कुछ बोलना है कि हो नो गया? एक्चुअली ये अभी ये जो पॉइंट आया था सेक्स एजुकेशन का, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच नीड्स टू बी डिस्कस, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इन आवर स्कूल हैज फेस्ड अ सिचुएशन वेयर कि जब वो चैप्टर आ जाता था तो एवरीवन लाइक इवन टीचर्स भी उसको एक्सप्लेन नहीं करते या फिर केवल नोट्स दे देते हैं। बच्चों दे को आर पहले ही लाइक पता एक होता है। नहीं ऐसा नहीं होता। अगर पहले मतलब दे आर लाइक इतना नहीं पता होता, मतलब दे आर लाइक साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती, वो तो खैर ठीक है, मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन वगैरह। तो आई थिंक ये सारी चीजें कुछ होंगे शायद ललित जिस जो उनको नहीं पता होगा, तो एक टीचर को हाँ, भी वो ये तो देखना मजाक चाहिए। था। हम एक अच्छा तो स्टोरी वैसे बताते हैं। We don't have any chapter regarding sex education. We only have a portion of reproduction. या या So, उसमें ही Isha, you were मतलब थोड़ा आ saying जाता है, something? कॉन्ट्रासेप्शन वाला आ जाता है, बट या Yeah, I उसी में was आ saying जाता है कि that Isha was those saying who are, something. I'm saying that those who are drafting this bill, I have a query from them also that उनके तो खुद चार से ज्यादा बच्चे हैं, तो how they are going to implement this act? मिनिस्टर्स बहुत बहुत अच्छी योगी चीज जी के बोली। वो भैया तो के मिनिस्टर था ना। मतलब छोटे भाई कितने होंगे जरा पता करके आओ। I guess Nishant wants to तो say something. इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हाँ सरकार ही रहने वाली है, क्योंकि एकदम सही उनके बोला। एमएलए और के सबके 30 से ज्यादा या बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इवन पता नहीं बिल्कुल सही यूपी है। के जो स्टेट कैबिनेट है उसमें पता नहीं कितने मतलब कितने मिनिस्टर्स हैं जिनके आई थिंक दूसरे आधे होंगे, तो क्या वो अपना कैबिनेट की पोजीशन छोड़ देंगे? वो 152 लोग मिनिस्टर ऐसे से 152 ये विधायक भी ऐसे मिनिस्टर हैं, से 152 विधायक ऐसे हैं हाँ जिनको मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सरकार ही इनकी गिर जाएगी। बिल्कुल अरे बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल। और कोई ये भी गवर्नमेंट पोजीशन नहीं कुछ नहीं होती होने जहाँ वाला तक है। पहले बिल कहता पहली बात तो है। कोई भी लॉ पीछे अप्लाई होता ही नहीं, आगे अप्लाई होता है। तो ये तो होने ही वाला नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। ये सब बेसिक नो, सरकार तो नहीं मतलब गिरेगी, और एज ये ए बिल जोक क्यों आया एज ए है ये भी जोक सब जानते एज हैं कि यूपी में एज ए इलेक्शन है, जोक तो एज ए इसीलिए इस जोक बिल मैंने को इसको लाया है। बोला यस है। मिशन हम्म। There is a 2022। person in the cabinet who has 8 children. तो वो अपनी 8. कैबिनेट का रिजाइन कर देगा, डोंट वरी। रिजाइन करेगा। रिजाइन तो कोई नहीं करेगा। योगी जी बोलेंगे उनसे कि बेटा काहे करे तुम ऐसा, तुम छोड़ो। या निशांत कुछ कहना चाहते हैं? निशांत कुछ कि कहना योगी चाहते जी हैं? हाँ हेलो सन्यासी हैं गाइस, तो हेलो ही इज हेलो। लाइक वो हाँ सोच हाँ रहे बोलो। हैं कि हेलो, बाकी सब भी सन्यासी हैं। या हाय निशांत। हेलो। मैंने अभी एक पॉइंट सुना था कि जैसे सभी ने कहा किसी ने कहा था कि मतलब अगर किसी का विल होगा तो उसके विल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आइदर ही मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन और एज मेनी एज ही वांट। तो अगर किसी का मन हुआ तो 12-20 बच्चे करेगा, तो उसका जो मतलब बियर होगा अनएम्प्लॉयमेंट, और कहीं न कहीं उस पे जो खर्च करेगी सरकार, तो वो दूसरे लोगों के जो है अदर पर्सन के मतलब जो हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, उनके टैक्स पेयर्स का ही मतलब पैसा उन पे खर्च करेगी। तो कहीं न कहीं वो सबके लिए वो घाटे का सौदा रहेगा। इस वजह से तो ये यूनिफ़ॉर्म बिल बनाया नो की गया है। नो बात हो रही नो है, सेल्फ निशांत, अवेयरनेस की और अवेयर करने की बात हो रही है। आप कैसे किसी को फोर्स कर सकते हो कोई चीज करने के लिए? आप अवेयर कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट फोर्स करने लगेगी तो फिर डेमोक्रेसी का क्या काम? अगर फोर्स फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ तो बोले। यहाँ एंड ये एक निशांत यूनिफ़ॉर्म जस्ट लॉ See, है ना, it's ये तो about लाइक individual liberty, निशांत। नो गवर्नमेंट कैन इंडिविजुअल तो नॉट है। फोर्स। सी, ये जो है 12 एंड 20 चाइल्ड, ये तो इतनी अवेयरनेस से ही आएंगी ये चीज़ें ना, ये तो इंसान खुद ही समझेगा। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन और फ्रॉम यू। बिल्कुल। इज़ एंड वन मोर थिंग इंडिविजुअल निशांत, लिबर्टी ये जो नहीं ये जो आपका क्वेश्चन है ये एक आई थिंक थोड़ा अनरीजनेबल एक उस पर टिका हुआ है, एक बेस पर कि किसी के 12 और 20। आई डोंट थिंक कि आज 21st सेंचुरी में किसी के 20 चिल्ड्रन होते हैं।
आई डोंट थिंक। आई थिंक जो मैक्सिमम भी जो होता है वो 5 और 6 होते हैं। 21st सेंचुरी नहीं, में 10 नहीं हो होता सकता है। 10 हुआ था क्या? अभी पिछले साउथ अफ्रीका अच्छा में। 5 या 6 भी हो रहे हैं, लेकिन 5 और 6 होने से हम लोग के जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके ऊपर वो लोड बन के ही आएंगे। अगर जितना अभी आप 5-6 से अगर एक पर्सन के ऊपर जोड़िए तो जितने हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे इंडिया में उसके ऊपर वो लोड बन के आएंगे। तो एक हमें नहीं एक निशांत, ऑप्टिमम नंबर चूज करना पड़ेगा। नंबर नहीं है कि हमारे कल्चर करते हुए हम भेज देंगे हाँ, और लेकिन फिर निशांत करेंगे तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कुछ प्राइवेट भी तो करेंगे। एक ये भी तो नहीं नहीं, नौकरी तो उसी भी सरकार करे, प्रेफरेंस ऐसा देना कुछ पड़ेगा ही ना नहीं किसी है। को नौ, ना। नौकरी इज नॉट नॉट अ थिंग। नौकरी के लिए केवल नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे वो छोटे से जब बड़े होंगे उनके ऊपर सरकार की कई नीतियां लगूंगी। वो इंडियन सिटीजनशिप के अंदर जितने भी सरकार की योजनाएं हैं उसका भी बेनिफिट वो सब उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोड बन के ही तो आएंगे टैक्स पेयर्स पे। मैं इसकी बात हाँ, मैं मैं बताऊँ एक इसका मिनट एक मिनट एक मिनट रीज़न क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज कि टैक्स पेयर्स कहा जाता है कि हम मतलब कि टैक्स पेयर पे बोझ बन के आएंगे। तो ये हम सबको बता दें कि इस देश का एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वहीं से वो अपने हिस्से का टैक्स पे करना शुरू कर देता है, चाहे जो हो। तो ये जो टैक्स पेयर्स का मतलब रोना रोया जाता है कि टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, ये कुछ लोगों का पैसा नहीं जा रहा है। आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपको उतना टैक्स लेगा। जो जितना कम कंज्यूम करता है, उस पे उतना कम उस पे उतना कम टैक्स लगता है। तो ये अच्छा मेरे हिसाब से एक मिथ्या टैक्स जो है पे मतलब कि हाँ, अच्छा टैक्स पेयर के अलावा मेरे पास एक और पॉइंट है कि लाइक मेरे मतलब यहाँ पे हमारे अभी पास जैसे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ लाइक लेट इट बी आईआईटी। तो आईआईटी में अपॉर्चुनिटीज केवल 10,000 स्टूडेंट्स के अप्रॉक्स हैं कि 10,000 बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब अगर अधिक पॉपुलेशन होगी तो मतलब बहुत ज़्यादा लड़के भरेंगे उसको फॉर्म। जितने अधिक बढ़ते जाएंगे पॉपुलेशन तो भरेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जो होंगे सिलेक्शंस कम होंगे। बाकी बचे हुए जो हैं अदर प्राइवेट कॉलेजेस या अदर चीज़ से जा रहे हैं जहाँ की वो उतने स्किलफुल नहीं हो पाते हैं जितने की मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे लाइक सरकारी इंस्टीट्यूट आईआईटी वगैरह में हो पाते हैं वो सब जितने स्किलफुल। तो क्या कहीं ना कहीं ये मतलब हमारे जो बोल रहे हैं कि इफ़िशिएंट और काफ़ी स्किलफुल हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा करेंगे अपने तो वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा? सकते हैं। मैं इसका जवाब दूँ? याद हो हाँ हाँ। हाँ, सबसे पहली बात तो अगर लाइक सबको पता है कि लाइक अगर कंपटीशन ज़्यादा है, लाइक कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा है, तो तुम आईआईटी भी तो बढ़ा सकते हो। ज़रूरी थोड़ी कि हर साल एक नया मंदिर बना दोगे, वो तो कहीं लिखा नहीं है। और अगर तुम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हो तो फिर तो ज़रूरी नहीं आईआईटी एक दिल्ली में ही हो या फिर अराउंड पूरे इंडिया में 8-10 हो, 20 भी हो सकते हैं। कोई हमारे पे लैंड की कमी तो है नहीं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने बोला कि लाइक टैक्स पेयर ऐसा लाइक वो बर्डन बन के आएंगे, लाइक अगर सपोज़ करो कि मेरे मेरे दादा ने 8 बच्चे करे, तो लाइक वो उनके अकॉर्डिंग कमाएंगे भी तो ताकि वो उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। और जब जब कमाएंगे तो आई थिंक कंट्री पे कुछ ना कुछ प्रमोट लाइक कुछ कंट्री को देंगे ही। कमाते हुए लाइक मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ पार्ट ले रहा हूँ, तो आई थिंक वो सही है देखा जाए तो। तो ऐसा कितने आईआईटीज बना देंगे? पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को देखते हुए तो ऐसे नहीं बन सकता ना। अभी क्वालिटी और इफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे। हम तो वैसे टैक्स हज़ारों पेयर वाली आईआईटी बात सरकार जो खड़ी है, कर आईआईटी सकती में है। तो वैसे ही कंपटीशन होता है। और टैक्स पेयर वाली बात जो है निशांत की, वो कहीं ना कहीं सही है। जैसे मान लो कि कोई, जैसे विकास ने बोला कि सब लोग अपने अपने हिस्से का दे रहे हैं पैसा, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा दे रहे हैं। अब जैसे मान लो कि कोई गरीब घर का है, अगर उसने 10 रुपए का खाया कुछ, अब उस पर टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन जो जिनकी इनकम ज्यादा है उनको टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद उनके टैक्स को यूज करके ही तो आईआईटीज और ये सब बनते हैं। तो मतलब कहने का मतलब, जो एक प्लॉट है वो पूरी कंट्री को चला रहा है। तो अगर इस लॉट को बढ़ाना है तो देखो, पॉपुलेशन तो जरूरी है। पॉपुलेशन को हम ऐसे नहीं कह सकते हट जाओ, पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमें नहीं चाहिए। पॉपुलेशन जरूरी है, अभी थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, जिसके लिए हम लेजिस्लेशन यूज नहीं कर सकते निशांत। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस ही कर सकते, अवेयर कर सकते हैं हम लोगों को, उनको फोर्स नहीं कर सकते। आई थिंक सो ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो 12 बच्चे पॉपुलेशन किसने करे ऑलरेडी यार? डिक्लाइनिंग हो जा रही है। आप जरा 12 बच्चे गांव किसने करे थे वो बताओ बस। गांव में आके देखो आप, 12 क्या 20-20 मिल जाएंगे कईयों को। और वो पुराने होंगे यार, मतलब आज के ज़माने में अवेयरनेस आई आज के थिंक नहीं, ये 3 साल ऐसे पहले। शॉकिंग होगा। या
बिल पास होने से पहले तो पक्का किसी ने 12 कर दोगे, मानता हूँ। बिल पास होने के बाद इतनी हिम्मत नहीं है, ना ना। एक चीज और हाँ, मतलब कि ये कहा गया कि इस बिल में अगला चीज, ये पॉइंट, एक पॉइंट और था इसमें कि जो भी लोग मतलब जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, वो लोग क्या होंगे कि उनको कोई वेलफेयर स्कीम मिलनी ही नहीं है। तो एक चीज ये बताओ, वेलफेयर स्कीम होती किसके लिए? वेलफेयर स्कीम होती है पुअर पीपल के लिए। और वो जो मतलब कि गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग उन्हीं लोगों में पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ज्यादा है। और मैं यहाँ तक भी श्योर हूँ कि उन्हें ये भी नहीं अवेयर होगा कि सरकार 2 से ज्यादा बच्चे करने पे हमें जो राशन मिलता है वो राशन मिलना बंद हो जाएगी। तो वेलफेयर स्कीम की फिर हमारे यहाँ जरूरत ही नहीं रह जाएगी, फिर सरकार को टैक्सेस की भी जरूरत नहीं रह जाएगी अगर वेलफेयर स्कीम की। हाँ, हेलो विकास। मैं एक पॉइंट आपका जो है ये वाला, ये अवेयरनेस वाली की जो बात कर रहे हैं, अगर सरकार यही अवेयर कर दे कि आप केवल 2 बच्चे करें अगर ढंग से, अगर इसी की अवेयरनेस हो जाए, तो लोगों को 50 बच्चे करने की वजह से ही तो वो गरीब क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन ढंग के पास उनकी नहीं है। और एजुकेशन ढंग की क्यों नहीं है? क्योंकि वो उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पढ़ाई कर सकें। तो अगर मान लीजिए लेट इट बी कि एक गरीब है, उसके पास एक लड़का है, तो केवल जितना रिसोर्स है अपना, वो केवल एक लड़के को पढ़ाने के लिए अपने लगाएगा, उस एक लड़के को एफिशिएंट बनाने में लगाएगा। लेकिन उसके 4 बच्चे हो गए, तो वही जो गरीब है उतना ही कमाएगा, लेकिन जो एफिशिएंसी होगी, जो रिसोर्सेज होंगे, अब वो 4 बच्चों में उसको बांटने पड़ेंगे। तो क्या कहीं न कहीं ये ओवर पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ब्रस्ट हमारे लिए खराब नहीं है? जो बिल है वो क्या सही है या गलत है? एक मतलब लिबर्टी के अलावा आप जरा नेशन वाइड सोच के देखिए इसको। नेशन एक वाइड हम गरीब शायद से पहले पढ़ाई से पहले अपने खान पान का सोचता है। पढ़ाई तो शायद से उसके लिए बहुत लास्ट में आता है कि लाइक अगर ठीक हाँ है। उसीलिए तो मैंने बोला उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो केवल एक बच्चे पे नहीं खर्च करके वो चारों पे खर्च करेगा उस टाइम पे। उस पे तो एक वो बच्चा ढंग होगा से तो घर खर्च पे नहीं कर पाएगा। एक कमाई आएगी भाई, बस 4 नहीं आएगी। 4 बच्चों में तो 4 आएंगे। चार कमाई के आप तब सोच रहे हो जब वो बड़ा होगा तब। अगर मान हाँ, लीजिए वो 4 बच्चे नहीं, वैसे ही फिर निकल गए तो छोटों में ही काम निशांत करने में भेज और अगर वो देते एक हैं। छोटों में ही काम करने में वो भेज तो देते हैं। चाइल्ड लेबर नहीं तो सुनते। बोल रहा हूँ ओवर मैं। पॉपुलेशन की वजह से चाइल्ड ही ओवर पॉपुलेशन की वजह से ही चाइल्ड लेबर हो रहा है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन थ्रू नहीं, अवेयरनेस के थ्रू आप रिसोर्स डेवलप करिए। इन सब है। ये अवेयरनेस किसको एंड किया देयर इज वन जाता मोर है? पॉइंट, राइट। सी निशांत, जो अभी कहा वो एकदम करेक्ट था। क्यों? सी जैसे अभी कह रहे हैं कि जो अगर 4 चिल्ड्रन होंगे तो देयर विल बी मोर सैलरी, मतलब उस घर में होगी। तो यू कैन से वन थिंग कि इफ देयर इज ओनली वन चाइल्ड, तो अगर वो जो पर्सन है, वो जो पुअर पर्सन है, अगर वो अपना सारा जितना भी पैसा है वो उस पर लगाता है, तो वो हो सकता है कि वो जो बच्चा है वो डॉक्टर बन जाए। अब आप यहाँ कहाँ कहेंगे? क्योंकि अगर वो अपने रिसोर्स, अगर वो अपने फादर की तरह बनता, तो जो उसके जो 4 भाई थे उनकी सैलरी एक डॉक्टर के इक्वल हो जाएगी। तो फिर उसमें कहीं ये वाला चीज़ नहीं आएगी ना, सैलरी लॉस वाला। वो इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि उसकी एक बच्चे की सैलरी ही काफ़ी रहेगी। क्वालिटी हो जाएगी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी हो जाएगी फिर। अच्छा, एक बात ये बताओ मेरे को कि एक गरीब व्यक्ति, मतलब ज्यादातर बच्चे जो मतलब कि आता है कि वो अनएजुकेटेड लोगों में आता है। हम लोग क्या बात कब से कर रहे हैं कि हमको क्या करना है कि अवेयर करना है थ्रू लेजिस्लेशन के जरिए चीजों को, मतलब कि ये फोर्स ना की जाए। ये बात मतलब सभी लोग कर रहे हैं। और मैं यहाँ तक बोला हूँ आगे कि हमको जो है मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हमको पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान देना था तो थोड़ा और पहले देना चाहिए था, इस पॉइंट पे नहीं देना चाहिए। ठीक, मैंने ये बोला। और अगला चीज ये कि जो ये बात बोली जाती है कि मतलब ये बात बोली गई कि एक गरीब का अगर एक ही होता, तो अगर आप ये बताओ कि उनमें एक से ज्यादा मतलब कि बच्चे होते क्यों हैं? ये कोई क्योंकि वो बताएगा? अवेयर नहीं होते। अवेयर नहीं होते। अवेयर नहीं होते जिस वे में हम सोच सकते हैं, क्या उस वे में एक जैसे हम लोग जानते हैं कि हाँ मतलब कि रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। जो एजुकेटेड है वो लोग जानते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। और एजुकेशन का मतलब कि क्या रोल है हमारे लाइफ में, हम सब जानते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भाई आप ये
उसको कैसे समझ में आएगा? उसको तो वो मतलब कि जो 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में चली आई परंपरा है, वही उसको पता है, जो मतलब कि ट्रेडिशंस है, उसी के अनुसार उसे पता है कि हमारे ज़्यादा बच्चे होंगे। जैसे पहले मतलब देखा जाता था कि ज़्यादा बच्चे होंगे, हमारे खेतों में ज़्यादा काम करेंगे और खेतों में ज़्यादा काम करेंगे तो हमारी उपज अच्छी होगी। तो सेम उसी मेंटालिटी से वो जो अपने अनुभव के ज़रिए सीखा है, वही वो सीख के चला आया है। और इसको सर जो तो ये जो बुकिश नॉलेज अगर है वो समझेगा नहीं तो तो उसको अवेयरनेस क्या समझ में आएगी? क्या अवेयर कर पाओगे आप? वो अगर समझेगा ही नहीं। तो अभी क्यों नहीं समझाया समझ कहाँ है? समझाएंगे ना। समझाया कहाँ है भाई? अवेयरनेस कोई इतना मतलब बताओ, अवेयरनेस प्रोग्राम इतना ढंग से लाया गया है, मतलब कि अगर मान लो हम कह दो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए हमें, तो उसको पता है कि भैया 2 मतलब हमारे बच्चे कैसे रखेंगे, वो तो अपने सेक्सुअल इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ऐसे मतलब कि उसको पता ये भी नहीं हो सकता है, पता हो कि पीरियड्स के समय सेक्स भी नहीं करना चाहिए। मेरे को भी सही नहीं पता है क्या होता है रियलिटी, लेकिन उसको ये भी नहीं पता होगा। तो अगर उसको ये बताया जाएगी, हाँ, तरीके हैं, उसके बाद भी मतलब कि आप किस टाइम पे मतलब ये अपने सेक्स कर सकते हैं, तो ऐसे से आप उसको देंगे, तो वो कर पाएगा। आप उसको अवेयर ही नहीं करते हैं। गाँव में मतलब कि कैंप लगाए जाने चाहिए और मतलब कि जो रिसोर्सेज़ हम यहाँ पे इंसेंटिव के रूप में दे रहे हैं, वही अगर रिसोर्सेज़ हम यूज़ करें, मतलब कि लोगों को अवेयरनेस के और कहाँ सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरत है, ये शहरों में और डिजिटल विज्ञापन निकालने से और अखबारों में विज्ञापन निकालने से नहीं होगा। ये इसके लिए अगर कहीं काम करना होगा तो इसके लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। गाँव में जा जाके लोगों को समझाना होगा, एनजीओज़ के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू और आशा वर्कर के थ्रू उन लोगों की मतलब कि एक वीकली मीटिंग या मंथली मीटिंग करा के जो है उनको बताना होगा कि हाँ, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए जैसे कि मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जो हमारे हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज़ लाइक कंडोम्स और जो मतलब कि पिल्स होती है, उसको मतलब कि उन लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए। तो जो है मतलब कि क्या कर सकते हैं, इस वे में आपको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरीके से मतलब अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और अदरवाइज़ कि उनको बता दी कि नहीं भैया 2 से ज़्यादा बच्चे खराब हैं, तो बताओ भैया वो क्या कैसे रोक पाएगा? और दूसरी चीज़ कि वो इतना मतलब कि गरीब लोग हैं, तो वो लोग इस पे उतना खर्च नहीं करते हैं, तो इसको क्या करना चाहिए सरकार को ऐसी सारी चीज़ें जो है, जो मतलब बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और क्या इसकी दशा है, तो ये सब जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आशा वर्कर्स आजकल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मतलब थोड़ा अच्छा हुआ है, सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। आशा वर्कर के घर पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए, लोगों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, तो कहीं इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि अवेयरनेस आ सकती है। नहीं तो ये केवल राग लापने से नहीं होगा कि भैया 2 से ज़्यादा बच्चे खतरनाक हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे मतलब कि हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन वो कोट पड़ा हेल है, 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर, वो वाला हिसाब कर देगा बड़े सरकार। हाँ हेलो विकास। इससे हाँ निशा। मैं एक पॉइंट और रखना चाहूँगा। आपने बोला गाँव में अवेलेबल नहीं होती हैं पिल्स वगैरह, कॉन्डोम वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या शायद मैं समझता हूँ कि आप गाँव एरिया से बिलॉन्ग करते होंगे, तो आपने सरकारी अस्पतालों को विज़िट किया होगा शायद। तो क्या आपने वहाँ पे नहीं देखा है कि मतलब कितने सारे बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगे पड़े रहते हैं वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में इसके रिगार्डिंग, इस पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग, और वहाँ पे फ्री में आपको पिल्स वगैरह और भी सारी गोलियाँ उधर मिलती हैं। और मतलब इसका अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब हर सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है काफ़ी ईज़िली और ईज़िली प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि लड़के मतलब अब मैं भी गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, तो हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल है, सीएचसी है हमारे यहाँ। तो हम लोग भी देखते हैं कि इधर लड़के उस कॉन्डम में पानी भर के लाते चल रहे हैं, जो कि होली उसका रियल खेलते हैं। उपयोग कहीं और है। वही तो बोल रहा हूँ मैं, तो ये उसकी कमी की दिक्कत नहीं है कि इधर मतलब यहाँ पे कमी है, वो चीज़ है, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। तो और वही तो मैं बात हो एक गई और दूसरी बस बात यही है, हाईलाइट करूँ, बाकी मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। अभी इसने बोला कि गांव के लड़कों को पता है, बट ऐसे गांव के बुड्ढों को नहीं पता होगा कि उस टाइम ये इसे यूज़ और करके बच्चे कम हाँ, हो जाएंगे। तो ये भी बात है जहाँ और तक दूसरी पॉइंट लड़कों चीज़ को ये पता है। दूसरी चीज़ क्योंकि लड़के भाई उसका यूज़ कर रहे हैं आज के समय में और दूसरी चीज़ ये कि मैं जो हमारे सीएचसी है ये पता होगा सीएचसी तहसील में केवल एक होती है, पीएचसी पूरे ब्लॉक में केवल एक होती है और उसके बाद जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक ब्लॉक में एक ही होता है। बाकी और कितने होते हैं मतलब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो अच्छे से जान रहे हैं, गाँव में है तो आप अच्छे से जान रहे हैं कितने दूर मेरे पे यहाँ
मेरे यहाँ मैं ग्रामर से बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। हमारे यहाँ टोटल एक सीएचसी है भदौरा में, हमारा ब्लॉक है वो। पीएचसी हाँ। हमारे यहाँ हमारे गांव में है, और पीएचसी एक हम्म। नहीं है, हमारे यहाँ 3 है। 2 जो है एक टाइप से है, मतलब वहाँ पे नर्स रहती हैं केवल। एक जो है पीएचसी, वहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर रहते हैं। तो ये मेरे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं अभी आपको, और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो वो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बहुत दूरी के ना है, हम जौनपुर के है। हाँ, तो फिर मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि एक ब्लॉक में केवल तो एक ही पीएचसी होता है और एक ही नहीं सीएचसी तो होता है? देखो, हम अपने पूरे पीएचसी और जो सीएचसी का है, तो ये मैंने अपने पूरे जौनपुर जिला का मैंने आंकड़ा उठा के देखा है, कितने पीएचसी हैं, कितने सीएचसी हैं। तो मैं पूरे जौनपुर का आंकड़ा उठा के बताया हूँ। और दूसरी चीज की आपके हमारे यहाँ से हम बता दें, पीएचसी हमारे यहाँ से नजदीक है, सीएचसी भी हमारे यहाँ से नजदीक है। लेकिन अगर हम अपने ननिहाल चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ मतलब कि पीएचसी जाने के लिए 14 किलोमीटर, सीएचसी जाने के लिए 28 किलोमीटर, और डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए 30 किलोमीटर, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के लिए 30 किलोमीटर, मतलब ये अवेलेबिलिटी है मतलब सरकारी हॉस्पिटल की। सो अगर किसी को कुत्ता काटता है तो 15 किलोमीटर दूर उसकी सुई मतलब सरकारी अस्पताल में लगवाने आता है। तो अगर भाई बताओ 15 किलोमीटर दूर से कोई कंडोम खरीदने आएगा, इससे अच्छा प्राइवेट में, मतलब जो लोग अवेयर है वहीं से ले लेंगे, पास के 10 रुपए मेडिकल में भी स्टोर काम चला सकता है भाई। से। अब तो यही क्या बात हो कि सरकारी अस्पताल ज्यादा हो तो भी कॉन्डम भी ज्यादा मिल सकते हैं। नहीं, जैसे ये आशा क्या वर्कर्स बात हैं, है? आशा वर्कर्स हैं जो लोग वहाँ पे, अगर ये सारी चीजें गांव-गांव प्रोवाइड की जाए, उनके थ्रू प्रोवाइड की जाए, उनके थ्रू अवेयरनेस बढ़ाया जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा एफिशिएंट हो पाएगा, और इस पे और जोर दिया जाना। मैं ये कहा कि जो हाँ, ये बात रिसोर्सेस सही है, वो ये बात सही है। इंसेंटिव के लिए यूज कर रही है, यही रिसोर्सेस क्या करे कि आशा वर्कर्स को प्रोवाइड करे, उनके जरिए क्या करे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाए उन लोगों में, जो लोग इसके मतलब कि जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ग्राउंड से जुड़ी रहती हैं, तो उन्हें अच्छे से चीजें पता रहती हैं। तो मैं इस पॉइंट पे बोला था। और बाकी जैसे मतलब कि ये कहा जाता है कि आपने ये शुरू में एक चीज कहा मेरे मतलब कि लिबर्टी के नाम पे, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट, क्या नेशन के इंटरेस्ट में ये चीजें नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, ये नेशन के इंटरेस्ट में इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के लोगों की सिविल लिबर्टीज और यहाँ के लोगों के राइट्स आते हैं। ये भी एक हमारा नेशन इंटरेस्ट है, और अगर राइट्स नहीं रह जाएंगे, ये सब मतलब कि हमको फ्रीडम नहीं रह जाएगी, तो क्या कंडीशन होगी, ये तो सब अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ये चीजें इन्फोर्स की जा रही हैं, कल कुछ और इन्फोर्स की जाएंगी, उसके बाद कुछ और इन्फोर्स की जाएंगी। तो ये आंधियां जो बंद हो जाएगी यार। वही ना। काश वैसे ही मर जाएगा बेचारा। Also to add it, I believe that poverty is the biggest reason in increasing population. अगर तुम या किसी या गरीब के पास जाओगे और कहोगे कि भाई 2 ही बच्चे रहने चाहिए तुम्हारे, यही बोलेगा कि क्यों नहीं रहने चाहिए, हमारे घर का काम कौन करेगा, हमारे इट बच्चे इज जाते होंगे एप्लीकेबल तब वाइस काम वर्सा करेगा। ऑल्सो। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स इसलिए लेने चाहिए कि कैसे वो पार्टी को कम करते हैं। जब पार्टी कम होगी तो आई बिलीव डायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो सकती है। इट इज एप्लीकेबल फॉर वाइस वर्सा ऑल्सो, बिकॉज पॉवर्टी किस वजह से है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है। मैं वही तो बात बोला हूँ कि वो अगर मान लीजिए एक मजदूर है, उसके 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चे फिर से मजदूरी करेंगे जाके, तो पॉवर्टी वो रहेगी ही रहेगी। और एक बच्चे को ढंग से पढ़ाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं है भाई, कहाँ से पढ़ा लेगा वो? एक ही तो बच्चा है, एक को पढ़ा सकता है लेकिन 4 को नहीं पढ़ा सकता। बताते हैं अगर ईसा ने जो गरीबी यहाँ नहीं पे रहती वो तो एक को फिर नहीं पढ़ा पाया ना। वो इंसान क्यों सोचता कि हमें और बच्चे चाहिए काम करने के लिए। जब गरीबी ही नहीं रहेगी तो वो 1 बच्चे और 2 बच्चे लेकर भी अपने परिवार के साथ रह सकता है। गरीबी का केस कहाँ से शुरू होता है? गरीब कौन होता है? आप गरीब देखोगे जिसके पास ज़्यादा मतलब वो मतलब पहले तो एजुकेटेड नहीं होगा, उसके पास एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती है मोस्टली। ये बता रहा हूँ मैं कि मतलब ये हर लोगों के एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, उसके पास नॉलेज उतना नहीं होता। वो सरकार की जो स्कीमें चलती हैं या जो भी चलती हैं वो उतना अवेयर नहीं उस चीज़ के लिए होता है। और कहीं ना कहीं उसके घर में आप देखोगे तो लड़के लड़कियां भी उसके घर में ज़्यादा होंगी। अब जैसे एक एक आदमी है, उसके 4 लड़के लड़कियां हुए, 2 लड़के 2 लड़कियां। अगर 2 लड़कियां हुई तो फिर उसकी शादी भी करेगा वो। और एक मतलब आइडियल कंडीशन से हट के मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप सभी लोग जानते हो कि एक लड़की की शादी में
अधिक खर्च लगता है, तो उसके लिए वो सेविंग करेगा, उसकी शादी करेगा। और अगर उसकी एक ही लड़की या एक ही लड़का होगा, या मान लीजिए एक लड़की एक लड़का हुआ, अगर 2 ही हुए, तो 2 पे उसको खर्च करना रहेगा, तो कहीं न कहीं उसके पैसे वो बचेंगे। वो जो चारों पे एक्सपेंस कर रहा है, बचपन से करते आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं सेव तो होगा, और वो कहीं न कहीं उन पे अच्छे से और खर्च कर पाएगा, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या ये निशांत, मतलब आई थिंक दैट दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। उसके पहले उसको पहले अपनी अपनी लाइफ को चलाने के लिए कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो तुम और कह रहे हो एक चीज और कि एक एक चीज और बच्चे पे ही अपने सारे रिसोर्सेज देंगे, तो ये बात की बात है जब कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तब। अभी फिलहाल में नहीं है, और ना ही अभी और पॉलिसी दूसरी कंट्रोल चीज में है। और दूसरी चीज ये गरीबी जो ये बता रहे हो, मतलब कि ये सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो, ये सिनेरियो कब आती? जब हमारे यहाँ से पहले कोई गरीब नहीं होता, जब हमारे यहाँ से पहले गरीबी नहीं होती, तब ये सिनेरियो होता कि कैसे वो गरीब हो गए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मतलब कि गरीबी कैसे आई, आजादी से पहले आई, कब आई, ये तो अच्छे से पता होगा कि जब हम आजाद थे कितने गरीब थे, कितने अमीर थे, और तब कितनी गरीबी थी, अब कितनी है। तो ये जो है मतलब कि ऐसे जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो सिनेरियो में क्या है कि तब आता जब मतलब कि हमारे यहाँ गरीबी होती ही नहीं, तब अगर ज़्यादा बच्चे होते, तब अगर ऐसे सिचुएशंस बनते, तब जाके ये कहा जा सकता हाँ ऐसे सिचुएशंस की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ से पहले से पॉवर्टी बनी हुई है, तो पॉवर्टी की एक साइकिल बनी हुई है, तो उस साइकिल को मतलब कि क्या है कि ऑटोमेटिकली थोड़ी ना तोड़ा जा सकता है, उसको एज ए ग्रेजुअल प्रोसेस में तोड़ा जाएगा। तो जो है मतलब ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ की अगर जो मतलब कि उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराना बंद कर दोगे, तो जो क्या होगा कि तब कुछ लोग जो सोसाइटी के हैं, वो लोग भूखे मरेंगे। गरीबी का रीजन पता है Yeah, निशांत? they will die by starving for food. एक मिनट, गरीबी का रीजन पता है निशांत भाई? बताइए, बताइए, आप बताइए। पता है पहले कैसे डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था, लोगों को गांव के अंदर नहीं आया जाता था, काम तो मिलता ही ये नहीं था। खैर, और दूसरी चीज़, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे टॉपिक ना होने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं ला रहा हूँ, वो कास्ट का रोल। बताओ सबसे ज़्यादा मतलब कि कौन से कास्ट के लोग और ज़्यादा मतलब कि उनकी पापू मतलब कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा गरीब हैं? जाहिर सी बात है, सबको पता होगी मतलब यहाँ पे SC STs। SC ST और मतलब कि जो लोअर कास्ट है उनके यहाँ होगी। तो वो लोग और उनको क्यों है? क्योंकि उनके साथ पहले से डिस्क्रिमिनेशन होता चला आया है। ये चीजें का मतलब कि बहुत पहले कुछ लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओनली द बियरर्स नोज वेयर द शूज पिंसेस, और जाकी पाँव न फटे विवाई सो का जाने पैर पर आई। तो ये सिचुएशंस मतलब कि उनके साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये जिसके साथ हुआ वही समझ सकते हैं, जिसके साथ नहीं हुआ है ना वो नहीं समझ सकता है। उसको तो लगता है कि हाँ कैसे गरीब होते हुए अब चले गए हैं लोग। और जो मतलब कि SC ST है वो लैंडलेस है, मतलब एकदम से पुअर है, उनके पास कुछ मतलब कि संपत्ति में तो अगर मैं 95 लोगों की बात कर रहा हूँ एक्सक्लूडिंग 5%, उनके पास तो प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ है ही नहीं। अच्छा विकास, वो गरीब है, मैं उनकी उनकी बात मानता हूँ, लेकिन एक गरीब है, मान लीजिए एक SC गरीब परिवार से है, उसके पास 4 बच्चे हुए उसके पैदा, और एक SC है कि उसके पास केवल 1 बच्चा पैदा हुआ है उसके पास। तो वो अगर वो उन चारों में से कौन बेहतर अपने बच्चों को भविष्य दे पाएगा? आप ये ज़रा बताइए। दोनों नहीं दे पाएंगे। नहीं, जो फिर भी उन दोनों नहीं दोनों में दे से पाए ये तो दोनों नहीं दे पाएंगे दोनों नहीं नहीं, दे पाएंगे। बेहतर उन दोनों में से एक तो बेहतर दे ही पाएगा विकास। ये तो अब आप ऐसी बात कर रहे हैं जो कि possible एक मैं बताता, लाइक अगर कंपेयर सपोज करोगे तो करो कोई ना कोई तो बेहतर होगा। दोनों माइनस में है, तो तुम ये देखोगे कि किसका ज़्यादा, जिसका कम माइनस है ज़्यादा माइनस है, ऐसा देखोगे? ठीक है, यहाँ पे ऐसा माइनस कोई नहीं है। आप शायद जानते होंगे, अगर मनरेगा में वो ऐसे ही काम कर रहा होगा तो 300 रुपए वो जरूर कमाता होगा ना आप। और वो 300 रुपए अगर उसको 4 बच्चों में खर्च करना है, मैं ये बात कर रहा हूँ, और अगर एक आदमी 300 रुपए केवल एक बच्चे पे खर्च करना है, तो कौन बेहतर भविष्य अपने बच्चों को दे पाएगा? मेरे हिसाब से एक्चुअली 4 बार दे पाएगा। जैसे विकास कहते हैं SC ST ओबीसी क्लासेस को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, तो अब 4 वाले को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो चार आपस में 4 लोग बांट लेंगे, मतलब कम अपॉर्चुनिटीज में से वो लोग ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, तो उनकी फैमिली के लिए ऐसा माहौल अच्छा रहेगा। अभी जो मतलब मैंने ये किस मतलब क्यों बोला कि दोनों में से कोई नहीं मतलब कि अच्छा कर पाएंगे, उसका रीजन बताते हैं। पहली चीज की ये
कि अभी भी हमको नहीं, मतलब कि कुछ लोगों को लगेगा कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लेकिन अभी भी एससी और एसटी के साथ लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं 11वीं 12वीं में जिस मतलब कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, वहाँ पे जो है मतलब कि कोई एससी एसटी का था ही नहीं, ठीक है। और तो क्या होगा कि जो अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है वो उनको अच्छे से पढ़ा लिखा पाएगा, तो क्या होगा जानते हो यहाँ पर? अब बताते हैं कैसे होगा ये चीज। क्या होगा कि मान लो तुमने कहा कि वो कौन अच्छा कर पाएगा अपने, मान लो कि जो जिसके एक बच्चे थे उसने प्राइमरी स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए, अब वो क्या हुआ कि जिसके चार थे उसने नहीं भेज पाया, वो क्या होगा कि वो अपने बच्चों को भेज दिया, जाओ तुम मजदूरी करो कुछ भी करके कमाओ। तो क्या होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, जब उसके मतलब कि मान लो जिसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसके 4 हैं वो भेज दिए उनको काम करने के लिए। फिर क्या हो जाएगा कि वो काम कर रहे हैं तो जो है उनके यहाँ आमदनी आना हो जाएगी, तो अपना कुछ डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों का। और वो जो है वो अपने बच्चे को भी पढ़ा रहा है, उसकी जैसी सिचुएशन पहले थी वैसे सिचुएशन अभी है, और पढ़ाई में और पैसे पैसे लगने की वजह से उसका मतलब कि क्या है कि वो और मतलब कि उनके कंपेरेटिवली और कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तब अगला क्या हो जाएगा कि उनको जो मतलब कि एससी है जो 300 कमाता है, वो अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं भेज पाएगा जहाँ पे मतलब कि एक अच्छा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए उसका, और वो गवर्नमेंट जॉब पा सके या कोई अच्छा जॉब कर सके। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि लोग जो मतलब कि सोसाइटी का, पूरे सोसाइटी का मॉरल है वो क्या होगा, वहां पे डाउन हो जाएगा कि भैया देखो उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, वो कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे सिचुएशंस में हम ये इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि जो बोला मतलब कि बोला जा रहा है एक मतलब कि चाइल्ड होंगे या 4 चाइल्ड होंगे, तो केवल इस चीज से हम बचा जा सकता है इन सब चीजों को कि अवेयरनेस एक ही वेपन है, अवेयरनेस और थ्रू एजुकेशन। और थ्रू एजुकेशन का पूरा एजुकेशन कैसे आएगा, वो जब गवर्नमेंट इस पे एजुकेशन पे खर्चा करे ढंग से। और गवर्नमेंट एजुकेशन पे कितना खर्चा करती है ये अभी आंकड़ा निकाल के देखेंगे, तो जाहिर सी बात है जीडीपी का जीरो मतलब एक भी परसेंट ढंग से खर्चा नहीं करती है सरकार। और पूरे मतलब कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर जीडी मतलब कि एजुकेशन पे कहीं खर्चा होता है, तो हमें लगता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, जो रिपीटेड कंट्री जो अपने आप को सुपर पावर मानती है, उनसे भी नीचे हैं हम। अच्छा ठीक है, अब हमें लगता है कि कंक्लूड करना चाहिए। तो जो लोग और नहीं बोले हैं, मतलब जो लोग और बोलना चाहते हैं, जिन्होंने अपने व्यू अभी तक नहीं दिए हैं, वो लोग भी अपने व्यू दे सकते हैं। तुषार हाँ जी और बोलिए। भूख लग रही निकिता, है मेरे को। कामना, हर्षद बाबुल। बस मेरे व्यू पे तो तुम लोगों ने बात ही नहीं की। एक्चुअली तुम्हारे व्यू पे क्या तो मैंने उस व्यू पे मैंने बोला ये कम्युनलिज्म एंगल मैंने लाने की कोशिश की, लेकिन लोग इसमें इंटरेस्टेड कम दिखे, तो जो ये है इस पॉल पे साइंस वाले हैं तो पोल साइंस वाले हैं, तो वही मैंने बोला ये भी एक जरिया है कि हिंदुत्व की एक पॉलिसी भी है कि भैया देखो इसके जरिए उन्हीं को पर्टिकुलरली टारगेट तो किया जा रहा है, तो हम भी अच्छे से जानते हैं। और जिसको ये नहीं लगता है कि भाई उनको नहीं टारगेट किया जा रहा है, वो तो बोल सकते हैं कि हाँ नहीं किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा है, फिर हम आगे बताएं कि हाँ जो है मतलब कि कैसे किया जा रहा है। चलो कोई नहीं, कंक्लूड कर। और किसी को कुछ निकिता बोलना है? निकिता और कामना, बाबुल। हर्षद ओके देन गाइस, मैं एंड करते हैं फिर। आज का तो डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, आप लोग जुड़े आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। अगले वीक भी शायद हमारा डिस्कशन होगा, तो उसके लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए।